Hello students, class 10 mathematics chapter 4 quadratic equation. We were discussing quadratic equations and today let us take some more examples. So we have three examples here. 3 root 3x square plus 10x plus root 3 is equal to 0 is our first example. Let us solve this. तो हम इसको solve करते हैं by splitting the middle term. In the first step we multiply a with c. A is 3 root 3 and C is root 3. So 3 root 3 into root 3 is nothing but root 3 into root 3 is 3, 3 into 3 is 9. तो A into C is 9. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप we have to split this 9. तो हमारे लिए सूटेबल है 9 into 1. वैसे तो और भी इसके फैक्टर्स निकलते हैं बट 9 into 1 इज सूटेबल बिकॉज वी हैव 10 इन द मिडल. अगर 9 और 1 को ऐड करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा. देयरफॉर इट इज सूटेबल फॉर मी. देयरफॉर आई विल टेक 9 and 1 as a factor of 9. Grouping we will take the first two terms and the next two terms. ग्रुपिंग में कॉमन चीज बाहर निकलती है. तो कॉमन कैसे निकलता है यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 इन्वॉल्व है. तो हम फर्स्ट दो टर्म्स लेते हैं. फर्स्ट टर्म में है 3 रूट 3x स्क्वायर. दूसरे टर्म में है 9x. तो 9 को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 3 इंटू 3x. 3 इंटू 3x इज 9x. अभी हमें 3 और x तो कॉमन दोनों में नजर आ रहा है बट स्टिल इस 3 को और तोड़ सकते हैं हम. इसको हम तोड़ते हैं 3 रूट 3x स्क्वायर प्लस इस 3 को हम फर्दर तोड़ते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3x. तो इस तरीके से हमारे पास कॉमन आ जाता है 3 रूट 3x हियर, 3 रूट 3x हियर. तो 3 रूट 3x कॉमन निकल जाएगा. ये कॉमन निकल गया फर्स्ट वाले में. तो हमारे पास अंदर टर्म बच गए. यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे सिर्फ रूट 3 बचा. तो इस तरीके से हमारे पास अब अंदर कॉमन आ गया x प्लस रूट 3. नाउ सेकेंड ग्रुपिंग में कॉमन कुछ भी नजर नहीं आ रहा. देयरफॉर वी हैव 1 एज अ कॉमन. अंदर रह जाएगा x प्लस रूट 3. अब ग्रुपिंग करने के बाद में अब नेक्स्ट ये दोनों कॉमन है तो x प्लस रूट 3 कॉमन निकल गया. यहाँ पे ये बाहर जाने के बाद हमारे पास बचा रूट 3x और यहाँ पे ये बाहर जाने के बाद बचा 1. तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आई हैव 2 फैक्टर्स x प्लस रूट 3 एंड 3 रूट 3x प्लस 1. Now let us do the same question by completing the square method. First step, divide the whole equation by the coefficient of x square, that is 3 root 3. तो हमने इसको डिवाइड कर लिया. ये कट रहा है, काट लिया हमने. Second step, bring this constant to the right hand side. So we have brought this to the right hand side. Therefore it has become negative term. Next step, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x सेपरेटली. तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 10 अपॉन 3 रूट 3. राइट इट सेपरेटली. देन डिवाइड इट बाय 2 एंड स्क्वायर इट. देन एड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. देयरफॉर वी हैव टू एड LHS and also to the RHS. So what you have done, we have taken the coefficient of x, we have divided it by 2, we have squared it, then we have added it to both LHS and RHS. Now you have to apply identity on the LHS and simplify on the RHS. Take the sign of the middle term, write it. Take the term inside the square x for the first term,
Similarly for the third term, take the term inside the square and write here 5/3 root 3, then put the whole square. तो ये मिल गया हमें LHS. Now simplify the RHS. Simplifying the RHS, we have minus 1/3 plus 5 का square 25 and 3 root 3 का square. You will have, for square of 3 we have 9, for square of root 3 we have 3, therefore this will be 27. Therefore denominator we have 27. Now taking LCM of these two terms, we will be having 27 as LCM, and on simplifying the numerator we will have minus 9 plus 25/27. So 25 minus 9 is nothing but 16. So we have simplified the RHS. Taking square root on both sides, and we have to apply both positive and negative sign on the RHS. RHS में हमें प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा. Now writing any term inside, this will get cancelled, so we will be left with x plus 5/3 root 3 on the LHS, and RHS we have to take square root. Square root of 16 is 4, square root of 27 is 3 root 3. क्योंकि हमने 3 root 3 को स्क्वायर करके ही 27 लाए थे, तो हम उसको वापस अंडर रूट निकालेंगे, तो वी विल गेट 3 root 3. यस, अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो. 27, टेक द फैक्टर्स 9, 3 हियर, सो 1, ये पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा, ये स्क्वायर के अंदर ही रह जाएगा, तो यू विल हैव 3 root 3. Therefore square root of 27 is 3 root 3. Now bring the 5/3 root 3 to the RHS, so it will become negative. Now we can simplify this to get two values for x. तो ये हो गया हमारा वहां का लास्ट टर्म, तो जिसमें हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. प्लस के साथ यहाँ लिख लिया और माइनस के साथ यहाँ लिख लिया, प्लस के साथ और ये माइनस के साथ. ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -5 + 4, तो ऊपर -5 + 4 विल बी -1, तो ऊपर तो आ गया -1, नीचे अभी भी 3 root 3 है, तो दिस इज माई one value of x, and in the other one we have negative in the middle, therefore यहाँ पे आ जाएगा -5 और -4. न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा -9, डिनोमिनेटर में दोनों में अभी भी 3 root 3 है, तो विल हैव -9/3 root 3. 3 से 3 times कैंसल, एंड न्यूमरेटर का 3 root 3 into root 3 लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में root 3 है, तो ये root 3 इस root 3 से कट गया, तो विल बी लेफ्ट विथ नेगेटिव root 3. So this is my second value of x. Let us take 16x square minus 24x minus 13 is equal to 0. अब इसको हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं. तो बिफोर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी मस्ट नो द फॉर्मूला. x is equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac upon the whole upon 2a. So minus b plus or minus the whole upon, now we have a is equal to 16, b is equal to -24, c is equal to -13. Now replacing in the formula b, the first formula is minus b, so this is the minus of formula, and this is -24 is written here, -24 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर minus 4ac, 4 from the formula, 16 is a and -13 is c. Therefore minus b plus or minus under root b square minus 4ac, हमने रिप्लेस कर दिया b को और a और c को. रिप्लेस करने के बाद में हमें सिंप्लीफाई करना है. डिनोमिनेटर ऑल्सो वी हैव रिप्लेस्ड a, 2a था, तो a की वैल्यू यहाँ हमने रख दी.
नाउ सिंप्लीफाइंग वी विल गेट द आंसर. नाउ -24 का स्क्वायर 576 माइनस कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो द आंसर विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, क्योंकि पावर कभी भी इवन आएगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो 24 का स्क्वायर 576 एंड दिस माइनस इंटू माइनस विल गेट पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. सो हियर वी हैव 832 माइनस इंटू माइनस प्लस हियर. Square of 24 is 576. Negative I have to discard because this is power is even. Therefore यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस इंटू माइनस प्लस 24 और अंदर ये वैल्यू आ गई. Therefore इन दोनों को ऐड किया तो we got 1408. Therefore we have 24 plus or minus under root 1408 upon 32. So this is simplified form of x here. Now further simplifying we will have, so this is the simplified form of 1408. 1408 के फैक्टर्स तो आपको निकालने आते ही हैं, आप निकाल लेना. You will arrive at this. तो you will get 704. Again by 2 you will get 3 2s are 6, 5 2s are 10, 2 2s are 4. Then again 176. Again 176 के factors you will have 2, 8, 2 is 16, 8 2s are 16. Again you have 2, 44. Again you have 2, 22. Again 22 you have 2, 11. Therefore 1 pair, 2 pair, 3 pair. 3 pair is 2 into 2 into 2, that is 8. 8 तो बाहर आ जाएगा एंड अंदर रह जाएगा 11 and 2. तो इस तरीके से और वैल्यू फॉर 1048, the value of under root 1408 is 8 under root 22. Now simplifying further in the numerator, we have 8 as common in this 2. 8 is taken out. अंदर बच गया 3 plus or minus under root 22 and denominator you have 32. 8 1 times, 32 4 times. So we are left with x equal to 3 plus or minus under root 22 upon 4. तो x की दो वैल्यू आ गई, one with the plus, another one with the minus. एक और एग्जांपल लेते हैं. x plus 1 upon x minus 1 minus x minus 1 upon x plus 1 is equal to 5 upon 6. तो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख नहीं रहा है. पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है. सॉल्व तो करना में आता है, अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं. नाउ इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 टर्म्स एंड बोथ आर इन रैशनल फॉर्म. तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने के लिए दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, आपको सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया, और बीच में जो भी साइन है, माइनस है तो माइनस लगा देना है, प्लस है तो प्लस लगा देना है, साइन लगा दिया. एंड इन द थर्ड स्टेप, फर्स्ट का डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है. तो ये हमारा एलसीएम हो गया. ठीक है. अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज नथिंग बट x प्लस 1 द होल स्क्वायर. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज नथिंग बट x माइनस 1 द होल स्क्वायर. एंड x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इन द डिनोमिनेटर. तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्म में है. तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे
आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो फर्स्ट टर्म में हमने आइडेंटिटी यूज की, ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लिख लिया। a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। बीच में साइन माइनस है, भूलना नहीं है, वो वैसे वैसे रहेगा। बीच में प्लस होता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस होता है तो आपको ब्रैकेट लगानी जरूरी है सेकंड टर्म के लिए, ठीक है, ये आप लगाना जरूरी है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट आपने लगा दी। नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस 2x है प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 है माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला साइन चेंज हो गए। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, +1 -1 will get cancelled. Now we are left with 2x plus 2x that is equal to 4x. तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया 4x, और डिनोमिनेटर में जैसे कि मैंने बताया था दिस इज x plus y into x minus y form, you will get x square minus y square. यहाँ पे y की जगह 1 है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1, therefore we will get x square minus 1 here, और राइट साइड में हमारे पास 5/6 है। सो दिस इज द फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हियर वी हैव 4, 6 को आप इधर ले आइए, दिस विल गेट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले आइए, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 into 4x is 24x, and this 5 into x square 5x square, 5 into -1 -5. So now bring 24x to the right hand side, you will get 24x square minus 24x minus 5 is equal to 0. So 5x square minus 24x minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. Now we have got A, B and C. A is 5, B is -24, C is -5. अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो B की जगह हमने रख दिया -24 एंड A की जगह रख दिया हमने 5, C की जगह हमने रख दिया -5। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन और आसान हो गया। दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। तो हमारे नेक्स्ट टर्म में ये पॉजिटिव हो गया, ये 24 का स्क्वायर 576 हो गया, क्योंकि स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग विल बी पॉजिटिव। 576 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 इज 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। सो दिस इज सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट स्टेप, 576 प्लस 100 इज 676, 24 will remain as such, बीच में प्लस माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में we have 2 into 5 10, स्क्वायर रूट ऑफ 676 is nothing but 26, तो यहाँ पे 26 आ गया, 26 आ गया। Now we can separate this into two terms, one with the positive 24 plus 26, this is the positive term, and next is 24 minus 26, this is negative term। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म दोनों अलग अलग कर लिए और दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। 24 plus 26 is 50, तो 50/10 is 5। हियर वी हैव 24 minus 26 -2/10, कैंसिल आउट होने के बाद में -1/5। देयरफॉर वी हैव टू वैल्यू फॉर x, one is 5, another one is -1/5। So these are the two value of x for this question. With that, we come to an end of this video. We will meet again with a new topic in a new video.